Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect. So children, before starting the class, let me introduce myself to you. Myself Pooja Rawat and I'm going to teach you an interesting and amazing subject which is computer. तो इसी कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे how computer works, storage devices, input and output devices, MS Word, Excel, PowerPoint, logo, AI and how to use internet. So let's start the class. So children, let's begin with our very first chapter, which is components of a computer. This chapter covers uses of input and output devices, know the computer processing, understanding IPO cycle and benefits of computer. तो ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं. Computer is a very complex electronic machine made by human. Computer is very fast as well as accurate electronic device. It accepts input, stores and processes information and produces the desired output. तो कंप्यूटर के बारे में आप सबको पता है, ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कि ह्यूमन ने बनाई है. कंप्यूटर जो है ये एक्यूरेट आपको रिजल्ट देता है, साथ ही साथ ये आपके इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और एक डिजायर्ड आउटपुट आपको देता है. CPU processes the data according to the given instructions and stores the result. Keyboard allows us to type data and instructions into a computer. Monitor displays input and results. Mouse allows us to select and move the objects on the screen. तो ये चार जो है मेन पार्ट होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है. जैसे CPU जो होता है कंप्यूटर का, वो डेटा को प्रोसेस करता है. कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप डेटा को अपने मॉनिटर पे इनपुट करते हैं, डालते हैं. मॉनिटर जो होता है ये आपके इनपुट को डिस्प्ले करता है एंड माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है आपके आइकन्स को सेलेक्ट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए. A computer and its work. A computer is a machine. It works on the principle of IPO cycle. IPO cycle. In IPO cycle, data and instructions are entered, they are processed, stored, and finally the result is taken out. हमारा जो कंप्यूटर है वो एक IPO साइकिल पे वर्क करता है. IPO का मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है. Instructions and commands given to a computer are called input or data. A computer accepts, examines and calculates the result. This is called processing. The result given by the computer after processing is called output. Let's recall input processing and output with an example. तो आपके जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कमांड्स जो होती हैं वो कंप्यूटर को दी जाती हैं, ठीक है, जिनको हम इनपुट या फिर डेटा कहते हैं. फिर कंप्यूटर जो है उनको एक्सेप्ट करता है, उनको एग्जामिन करता है और उनको प्रोसेस करता है और रिजल्ट को भी कैलकुलेट करता है. इसके बाद आपका जो रिजल्ट होता है वो कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट के तौर पर दिया जाता है. Do you know how a shirt is stitched? Cloth and thread. Cloth being stitched shirt. अब आप सबने देखा होगा कि जो आपकी शर्ट्स होती हैं, जो भी कपड़े आप पहनते हैं वो कैसे बनते हैं. तो पहले आप क्लॉथ एंड थ्रेड खरीदते हैं, उसको टेलर को देते हैं और टेलर उसको प्रोसेस करके क्या करता है, सिलाई वगैरह करके, कटिंग वगैरह करके आपको एक बढ़िया सी ड्रेस, एक बढ़िया सी शर्ट बना करके दे देता है आउटपुट के तौर पे. तो यहाँ पे क्लॉथ एंड थ्रेड क्या है, ये आपके इनपुट है. टेलर क्या कर रहा है, उसे प्रोसेस कर रहा है एंड उसका आउटपुट आपको स्टिच्ड शर्ट के रूप में मिल रहा है. Similarly, to do any work on computer, we have to follow these 3 simple steps. The computer takes in data and instructions which we feed into it using input devices such as keyboard and mouse. तो कंप्यूटर भी आपका जो है इसी तरीके से काम करता है. आप कीबोर्ड के थ्रू अपने कंप्यूटर पे इनपुट वगैरह डालते हो.
It processes and stores the instructions that we feed into it using the CPU. और CPU से क्या करता है? प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द डेटा, जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन या डेटा जो है दिया होता है. Then it gives the result using output devices such as a monitor and printer. और उसका रिजल्ट जो है ये आपको मॉनिटर पे या फिर प्रिंटर के तौर पे दिखाई देता है. First input 2, 3 plus. The first step is to input data. Processing 2 plus 3, working on the data on the basis of a given instruction. आउटपुट 5 रिजल्ट इज ऑब्टेन. तो आपने कंप्यूटर को क्या किया? पहले डेटा दिया 2, 3 प्लस आपने उसको डेटा दिया, उसके बाद उसने उसको क्या किया? प्रोसेस किया. अब 2 और 3 है और साथ में प्लस है, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि इन दोनों नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है. उसका आउटपुट आपको सामने मिल जाएगा आपके मॉनिटर स्क्रीन पे कि 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 होता है. तो कंप्यूटर ने क्या किया? आपके डेटा जो आपने उसको दिया था उसको प्रोसेस किया, उसको ऐड करके आपका रिजल्ट आपको दिया. नाउ इनपुट जान लेते हैं इनपुट क्या होता है. The data and instructions which are provided to the computer are called input. The following devices are used to input data: mouse, कीबोर्ड, स्कैनर एंड जॉयस्टिक. तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस है जिनके थ्रू आप अपने डेटा को अपने मॉनिटर पे यानी कि अपने कंप्यूटर पे डालते हैं. नाउ डिस्कशन इन ग्रुप ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा. तो आपको बताना है कि डेटास के कितने फॉर्म होते हैं, मतलब किस किस तरह का डेटा आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं. फर्स्ट माउस. The mouse is an input device. It is used to give commands to the computer. It is used to point and choose things displayed on the monitor. It may have 2 or 3 buttons. The most commonly used one has 2 buttons: left mouse button and right mouse button. The left mouse button is the most frequently used button. तो माउस आपको पता है इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और इसके जो फीचर होता है, इसके जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसमें आपके बेसिकली 2 या 3 बटन होते हैं, लेकिन ज्यादातर 2 ही बटन देखे जाते हैं. एक होता है आपका लेफ्ट बटन एंड दूसरा होता है आपका राइट बटन. फैक्ट्स टू नो. डॉक्टर एंगलबार्ट इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट हमारे रिवीजन के लिए बताया गया है कि डॉक्टर एंगलबार्ट ने कंप्यूटर माउस को इन्वेंट किया था. नाउ सेकंड इज कीबोर्ड. Keyboard is an important part of input device. It is used to enter data and give commands to the computer. तो कीबोर्ड के बारे में भी हमें पता है, इसमें आपके छोटे छोटे कीज होती हैं जिसमें आपके नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स होते हैं जिनको प्रेस करके आप कंप्यूटर को कमांड देते हो. थर्ड इज स्कैनर. Scanner is a kind of input device that optically scans images, printed text, handwriting, or an object and convert it to a digital image. Scanners are of 2 types. पहले होते हैं आपके फ्लैट बेड और सिंपल स्कैनर्स. सेकंड आर हैंडहेल्ड स्कैनर्स. तो स्कैनर भी आपके इनपुट डिवाइसेस माने जाते हैं क्योंकि ये आपकी जो हार्ड कॉपीज होती हैं उनका एक सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल कॉपी आपको कंप्यूटर पे बना करके देते हैं. फैक्ट्स टू नो. सिंपल स्कैनर वर्क्स एज अ फोटोस्टैट मशीन. तो आपका जो सिंपल स्कैनर होता है वो फोटो मशीन की तरह, फोटोस्टैट मशीन की तरह ही काम करता है. फोर्थ इज जॉयस्टिक. So a joystick is also an input device. It is used to move the cursor position on a screen. Its function is similar to a mouse. It is a stick which has a spherical ball at its lower end as well as at its upper end. It is used for playing computer games. जॉयस्टिक भी आपका माउस की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका यूज हम नॉर्मली नहीं करते हैं. इसका यूज हम कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए करते हैं.
Now we will talk about processing. After we enter data, it is then processed in CPU, Central Processing Unit. CPU is the most important part of processing. It does all the processing and decision making in the computer. It also controls all the parts of the computer system. तो CPU आपको पता ही है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसके साथ साथ ये डिसीजन मेकिंग भी करता है। मतलब कंप्यूटर में अगर आपको कुछ भी इनपुट डालना है तो CPU हैंडल करता है या उसको मैनेज करता है कि किस तरीके से उस डेटा को मैनेज करना है। फैक्ट टू नो, सीपीयू चिप इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। तो सीपीयू बॉक्स के अंदर ही आपकी एक चिप होती है जिसको सीपीयू कहा जाता है। CPU is made up of three parts. These are Arithmetic and Logical Unit, ALU. This unit performs all the arithmetic and logical operations. Control Unit, CU. This unit controls all part of the computer and the movement of data. Memory Unit, MU. This unit stores the input and the output data. तो CPU जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको हम ALU कहते हैं। ये आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट जो है ये आपके जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनके मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट जो है ये आपके डेटास को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है मेमोरी यूनिट जो कि कंट्रोल यूनिट से अटैच होती है एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। नाउ बूस्ट योर माइंड, वेयर इज सीपीयू चिप फिटेड। अभी हमने पहले पढ़ा था कहाँ सीपीयू चिप जो होती है वो फिट होती है, सीपीयू बॉक्स में। अब हम जान लेते हैं आउटपुट के बारे में। The output is the result which the computer gives after processing the data. Following devices are the main output devices. The first is a monitor, second is printer, third is a speaker and the fourth one is the headphone. तो इनके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। First is monitor. When you type anything, you can see it on the monitor screen. Monitors are available in various shapes and sizes. There are following types of monitors. First, LCD liquid crystal display monitor, CRT cathode ray tube monitor. तो जब भी आप अपने कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो वो कहाँ डिस्प्ले होता है, आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। मॉनिटर आपका टीवी स्क्रीन की तरह होता है, ठीक है, जो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल होता है। तो बेसिकली ये आपके कुछ टाइप के मॉनिटर्स होते हैं जैसे एलसीडी एंड सीआरटी। फैक्ट्स टू नो, प्रिंटेड डेटा इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। ठीक है, तो जो आपका प्रिंट आउट निकाला जाता है प्रिंटर्स के द्वारा वो आपकी हार्ड कॉपी कहलाती है। सेकेंड इज प्रिंटर। A printer gives output on the paper. We can print text and pictures using a printer. A printer can print in black and white as well as in colors. तो प्रिंटर जो होता है ये आपके डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकाल करके आपको देता है। ठीक है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट टाइप की है आप प्रिंट के लिए कमांड देते हैं तो उसका प्रिंट आउट जो है प्रिंटर के द्वारा निकाला जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी चाहिए या फिर कलर्ड कॉपी चाहिए, ये दोनों ही आपको निकाल के देता है। Third is speaker. There are usually two speakers attached to computer. These are used to listen to music and sound. They come in various shapes and sizes. तो स्पीकर जो होते हैं ये आपके पेयर में ही यूज किए जाते हैं। अब सिंगल स्पीकर को कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं कर सकते। नाउ बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बेनिफिट्स हमें यहाँ पे दिए गए, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। The various benefits of computers are speed. Computers are very fast in working our task. They save our time and energy, thus production is more
परफॉर्मिंग। तो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है ह्यूमन से फास्ट होती है, ये बहुत जल्दी आपको कोई भी टास्क कंप्लीट करके दे देते हैं। Next is accuracy. Computers are very accurate. If the input is right, they never make mistakes. Computers कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करते अगर आपने उसको इनपुट जो है वो सही दिया है। Next is diligence. Computers never get tired or bored of doing same task continuously. They work in the same manner all the time. तो कंप्यूटर जो है ये कभी ना टायर्ड होते हैं ना ही ये बोर होते हैं। जब तक आप इन पे काम करोगे तब तक ये काम करते रहते हैं। Next is storage. A computer can store a large amount of information in its memory. We can use if further. तो कंप्यूटर के बारे में आपको पता ही है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज के साथ आता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बड़ी बड़ी फाइल को स्टोर करके रख सकते हो। Automation. If a task has to be performed several times, the computer needs to be instructed only once and it automatically completes the task. तो इसको आपको बार बार बोलने की, बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती। आप एक बार इसको कमांड दे देते हो, इंस्ट्रक्शन दे देते हो तो ये उसी को फॉलो करता है। Now, do you know hardware cannot work alone? Software makes the hardware its part. तो हम पहले भी जान चुके हैं हार्डवेयर जो है ये खुद से अकेले काम नहीं करते, इनको चलाने के लिए, वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। Now, summary of the chapter. A computer makes our work easier and faster. Computer works on the principle of IPO cycle. IPO cycle means input, processing and output. And input unit lets us communicate with the computer. Input device of a computer are keyboard, mouse, joystick and scanner. Processing unit does all necessary operations on the given data. CPU is the main processing device. It is made up of three main units: arithmetic, logical unit, control unit and memory unit. The output from a computer is the result which the computer gives after processing by CPU on the input. Output devices of a computer are मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। तो इस चैप्टर में हमने कंप्यूटर के आईपीओ साइकिल के बारे में जाना, इसके इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है वो परफेक्टली काम करता है। So children, I hope you have understood whatever we have done in the class. You will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.